So I would like to welcome everyone in today's paper discussion session. The very first rule of the session is you need to switch on the cameras. I will not invite you personally, individually to switch on the cameras. It is mandatory for everyone to switch on the cameras. Second, this is a paper discussion. That means it would be happening from the both side. So we both will be discussing the question paper, and after discussion we will be coming to a conclusion. Definitely the positive points would be taken by everyone from this particular session. I will be helping you out in discussing each and every question which has been framed by me as per the guidelines which are given by JK board. I will be telling you the right style of doing the paper. It has been prescribed by JK board and we need to follow that particular pattern, and that pattern has to be followed without any fail if we need to score well in the upcoming examination that is being scheduled on 6th of April. So बच्चे, I have already told you whenever you will be starting up with your paper, you do have to you have to keep one thing in your mind that always start up with the section C. अब मैं बार बार आपको हमेशा ये क्यों कहता हूँ कि बच्चे स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम सेक्शन सी. इट्स बिकॉज डू गिव मी ऑनेस्ट रिप्लाई during your preparatory holidays on which section you will be focusing more. So section C. Section Literature part. Literature part, right? Whenever we are preparing for a paper, that has to be checked by an evaluator who doesn't know you, right? So the basic thing is to create the first impression, the best. The first impression would be the best if you will be going to start with the section that you would be knowing the best. जो आपको अच्छे से आता है उसे आप अच्छे से करेंगे, तभी तो आप एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर पाएंगे अपने इवैल्यूएटर पे. ओके. सेकेंड पार्ट कि जब आप सेक्शन सी करेंगे आपको आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बूस्ट होगा. दिस इज ए साइकोलॉजिकली थिंग, इट्स ए साइकोलॉजिकल थिंग, राइट. उसके बाद आप सेक्शन बी करेंगे क्योंकि सेक्शन सी के बाद आप बहुत अच्छे से सेक्शन बी करते हो क्योंकि सेक्शन बी के आपने फॉर्मेट्स प्रैक्टिस किए होते हैं. एट द एंड गो विद द सेक्शन ए बिकॉज आपको तो पता ही नहीं है कि सेक्शन ए में क्या आएगा. अब हम इसको उल्टा लेते हैं. आपने सेक्शन ए से स्टार्ट किया, सेक्शन ए को करने के लिए आपको उसको पढ़ना पड़ा, आपको उसको समझना पड़ा, तो हमारा टाइम जो है वो काफ़ी निकल गया. सेक्शन ए सिर्फ 20 नंबर की है, ठीक है. सुपरिटेंडेंट ने बोला कि 90 मिनट्स हैज गॉन, हाफ ऑफ द टाइम इज गॉन, और आपने देखा कि आपने सिर्फ 20 नंबर का किया. उसके बाद 60 नंबर का अभी भी पड़ा हुआ है. आप सेक्शन बी पे आते हैं, सेक्शन बी भी टाइम टेकिंग सेक्शन है. उसके बाद आप सेक्शन सी में आते हैं और आपको रियलाइज होता है कि जो चीज़ें मुझे आती थी अब वो मैं भूल रही हूँ बिकॉज यू आर पजल्ड. आपका मोरल, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो डाउन हो गया है. तो बच्चे, हमने इस सिचुएशन को आने ही नहीं देना है. वी हैव टू पिक द राइट स्ट्रैटेजी. द राइट स्ट्रैटेजी इज हमने वो क्वेश्चन सबसे पहले करने हैं जिसको हम प्रिपेयर करके गए, और हम घर पे सेक्शन सी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं. सेक्शन सी के बाद हम स्विच करेंगे सेक्शन बी को, और सेक्शन बी के बाद हम स्विच करेंगे सेक्शन ए को, ताकि 90 मिनट्स या 2 आवर्स के बाद जब सुपरिटेंडेंट बोले कि हाफ ऑफ द टाइम इज ओवर या 2 आवर्स इज ओवर, तो आप ये देखो कि ओके, I have done section C, that means I have saved my 30 marks. I have also done section B, that means I have saved my 30 more marks. Total marks I am saving is 60. Now I am left with only 20 marks and I will be doing it pretty easily. Got it बच्चे? समझ में आ गया सबको? Yes, sir. Yes, sir. Okay. तो आज का जो सेशन है बच्चे, इट शुड बी 2-way कम्युनिकेशन प्रोसेस. आई वुड बी आस्किंग यू क्वेश्चन, आई रियली वांट यू टू आंसर. जहाँ पे आंसर नहीं आएगा हम उसे डिस्कस करेंगे, एंड यू डोंट हैव टू वरी फॉर एनीथिंग unless and until I will be there to help you out and support with you everything. Okay. So the first question I will be discussing with you is from section C. ठीक है बच्चे, अगर सेक्शन सी की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन would be coming from any of the poem, right? It is 4 marker. ये 4 marks का question है. You need to answer 4 questions and that is mandatory to answer as per your understanding, right? So पहला जो स्टेंजा मैंने दिया वो स्टेंजा है, सी बेटी एंड डॉली, शी विल से
and look how they dressed up for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter. तो बच्चे this stanza has been taken from which poem? Sir, photograph. Photograph is the Excellent. photograph. Photograph. Excellent. Wow. This is the spirit I want from you all. And who is the poet of the poem? Shirley Dawson. Shirley Shirley Dawson. Exactly. Thank you. And I want you to answer in this particular way only. Okay. The first question is done. Coming to the second question. How did she react whenever she looked at the snapshot? Snapshot मतलब कि photograph. कौन react करती है? मदर कैसे react करती है जब भी वो photograph को देखती है? सर जो मदर थी वो हंसती है और वो सोचती है कि वो कैसे ड्रेस हुए थे उस टाइम बीच पे जब वो छोटे थे अपनी कजिन्स के साथ. वेरी गुड. बेटी और डॉली के साथ जो उसके कजन्स थे, शी वॉज एवरी टाइम whenever she sees the snapshot she laughs at the photograph by thinking how they were dressed in the beach dress with her cousin Dolly and Betty. Excellent, Harshin. Okay, coming to the next question, you need to explain the sea holiday was her past. What do you mean by sea holiday was her past? Who will answer? Sea holiday was her past means now the mother, when she see the photograph, she remembers her childhood. She remembers those days which were quite relaxing for her. In those days she used to face no worries, no tension in her life, and that was the most precious and the golden period she has spent as a child. ठीक है बच्चे, बचपन के दिन कैसे थे बताओ अपने, प्रैक्टिकली सोचो. अच्छे थे? टेंशन होती थी बचपन में? Yes. No, sir. नहीं होती थी. वैसे ही मदर को भी टेंशन नहीं होता था. ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम बच्चे? No, sir. ओके, No, sir. coming to the next question. The next question says why is mother's laughter past for the narrator. अब ये लाइन यहाँ पे दी है. See, the sea holiday was her past. Mine is her laughter. मेरे लिए उनकी हंसी. तो क्यों मदर के लाफ्टर को पास्ट कहा गया नरेटर के लिए? Sir, क्योंकि क्योंकि अब उनकी मदर इस दुनिया में नहीं है. Very good. Because the mother is no more. Yes, The mother is dead. no more. Okay. Yes, sir. Thank you. Moving to next question. बच्चे, poem will be coming for 10 marks, जिसमें 4 marks का हमने डिस्कस किया है एक स्टार्ट बेस्ड क्वेश्चन. नाउ द लेफ्ट 6 marks कैसे बाइफरकेट होंगे वो मैं आपको बताऊंगा. You will be getting 3 questions and you have a privilege of doing any 2 out of 3. Each question carries 3 marks. That means you have to go with the total sum of 6 marks. तो पहला क्वेश्चन आई विल बी आस्किंग यू, does the poet talk of an exclusive personal experience or it is fairly universe? This is taken from father to son. मगर पहले मुझे इसके पोएट का नाम बताओ. Sir, Elizabeth. Elizabeth Jenny. Elizabeth Jennings. Jennings, right? Elizabeth Jennings is the poet for father to son. अब why the poet talks of an exclusive personal experience or it is a fairy universe? क्या ये पोएट का पोएट जो इसमें बात कर रहा है, ये जो एक्सपीरियंस है फादर का सन के साथ, ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है या ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि यूनिवर्स में सभी एक्सपीरियंस करते हैं फादर? तो यहाँ पे जो पोएट है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, बट ये एक यूनिवर्सल वो भी है क्योंकि ये हमारे हाउस होल्ड में बहुत ज्यादा कॉमन है, जिसको हम रेफर करते हैं एज जनरेशन गैप, जिसकी वजह से जो फादर और जो सन की जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल नहीं होती है और उनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज्यादा टैंगल्ड है इन सब चीजों में. बच्चों, और साथ ही साथ उनके थिंकिंग भी चेंज है बिकॉज ऑफ द जनरेशन गैप, राइट? ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है पोएट के लिए, बट इट इज अ क्वाइट यूनिवर्सल बिकॉज इट इज कॉमन इन एवरी हाउस. सी, 2 जनरेशन के थिंकिंग नहीं मैच होती है, सिंक्रनाइज नहीं होता है. तो ये एक जनरेशन गैप के कारण एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे ग्लोबली सभी फादर एंड सन सफर कर रहे हैं. गॉट इट?
Any Yes, problem? sir. No, sir. No, sir. Okay. Moving to next question. This question is from the Labanam top. The question says, why is the image of the engine evoked by the poet? क्यों इंजन का इमेज जो था वो पोइट ने इवोक किया? Before answering this question, I would like to ask you the poet of Labanam top. Who is the Sir, poet? Ted Ted Hughes. Very good, very nice. Ted Hughes is the poet for this particular poem. It's a very beautiful poem, Laburnum Top. इसमें गोल्ड फिंच होती है, right? तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? Who will answer this question? Okay, Harsheen. Apart from Harsheen, who's there? Harsheen, I'm really happy you are studying. What about others? बच्चे क्यों गोल्ड फिंच को इंजन के साथ इवोक किया है? इंजन क्या होता है, क्या काम करता है? इंजन जो है वो मशीन को चलाने में Source of energy. और बिना इंजन के जो मशीन है वो काम नहीं कर सकती। ओके, इसी तरह जो गोल्ड फिंच है वो फूड फीडर है अपनी उसके लिए अपनी वो फैमिली के लिए, ओके, इसलिए उसको इंजन के साथ कंपेयर किया किया है। गुड 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 हर्षेन. नाउ आई एम कमिंग टू जायमा चौधरी. जायमा, what do you want to say about it? Okay, let me take you to the poem. अब poem में I want to give you an example. इंजन के जो डब्बे होते हैं, क्या उनमें इतनी पावर होती है कि वो चल सकें? नहीं, they are being pulled by the engine. Okay, if I give you an other example, if I ask you who is the engine of your family, so could you please answer who is the engine of your family? Sir, mother. Father. Father, right? Why father is the engine of your family? because he is the bread earner. Definitely because he is the bread Bread earner. earner. Very good vocab used by you बच्चे. Okay, तो इसमें क्या है कि मदर जो गोल्डफिंच है, she is responsible for feeding her young ones. So that's why the poet has compared her with the engine, and the image of the engine evoked by the poet by this particular act which is being performed by the mother goldfinch. Got it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Coming to the next question. The next question is, what does rain tell the poet? The voice of rain. First answer me the poet of the voice of rain. Walt Whitman. Very good, very nice. And what does the rain tells the poet? रेन क्या कहती है पोइट को? I am the poem of the earth. वेरी गुड. उससे क्या होता है? what work does rain perform? Rain tells I'm the poem of the earth and I am responsible for rejuvenating earth. और क्या कहती है? It tells about the water cycle. Okay, earth is the only place from where it is taking birth, and again it is going up after evaporation. It is converting itself in the form of cloud. After condensation, precipitation happens and it is coming back to the earth again. Okay, and giving life to the seeds, plants, and rejuvenating earth. समझ गए बच्चे? सर एक बार फास्ट डिस्कनेक्ट हो गई थी. ओके, देखो अर्थ क्या कहती है, सॉरी ये रेन क्या कहती है? रेन कहती है कि आई एम दी पोम ऑफ द अर्थ. कैसे? क्योंकि ये अर्थ से ही बर्थ ले रही है. आप देखें कि सीज हैं, सीज में जब सनलाइट पड़ती है तो वाटर किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में. वाटर वेपर क्या करते हैं? ऊपर चले जाते हैं, लाइटर होते हैं, ठीक है, ऊपर जाके वो क्लाउड की शेप ले लेते हैं. फिर कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन के बाद प्रेसिपिटेशन होता है. तो ये जो रेन है ये वापस कहाँ पे आ रही है? अर्थ पे आ रही है, ठीक है. और अर्थ पे आके क्या कर रही है? ये अर्थ को रिजुविनेट कर रही है और जितने भी प्लांट्स हैं, जितने सीड्स हैं जिनको ग्रोथ के लिए पानी चाहिए, उनको लाइफ प्रोवाइड कर रही है. गॉट इट बच्चे? यस सर. ओके Yes, sir. ओके.
Moving to the next question. The next question says, short answer type question. You need to answer 3 questions out of 5. The very first question is, describe the changing relationship between the author and his grandmother. Did their feeling for each other change? Who will answer? आपको ये क्वेश्चन समझाना है जो कि पोर्ट्रेट ऑफ लेडी से लिया गया है. इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपने डिस्क्राइब करना है कि किस तरह से खुशवंत सिंह और उसकी ग्रैंड मदर का रिलेशनशिप चेंज हुआ और क्या सच में उनकी जो फीलिंग्स थी एक दूसरे के लिए वो भी चेंज हुई. Who will answer? Class? Okay, Sumaira, please proceed, बच्चे. सर एक्चुअली में जो होता है, पहले इनका मतलब खुशवंत सिंह का अपनी ग्रैंडमदर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होता है, और जब उसके पेरेंट्स, जो खुशवंत सिंह के पेरेंट्स होते हैं, उनको सिटी में बुलाते हैं तो वहाँ पे उनको स्कूल चेंज करवा देते हैं. तो स्कूल में जो उनकी दादी होती है, ग्रैंडमदर होती है, साथ नहीं जाती है, उनको नहीं जा पाती क्योंकि स्कूल के पास कोई भी, वहाँ पे उनको म्यूजिक सिखाया जाता है जो कि उसकी ग्रैंडमदर को पसंद नहीं था. और स्कूल में उनको मतलब उसको साइंस पढ़ाई जाती थी जिसमें उसकी ग्रैंडमदर जो है उसको हेल्प नहीं कर सकती थी. मतलब उसको वो हेल्प करती थी जब वो जहाँ वो पहले थे तो वहाँ वो उसकी हेल्प करती थी उसको पढ़ाने में, लेकिन जब वो सिटी में गए तो वहाँ वो उसकी हेल्प नहीं कर पाने लगी, जिससे फिर उनके रिलेशन में भी थोड़ा सा थोड़ी सी फीलिंग्स भी चेंज हुई. फिर वो उन्हें थोड़ी डिस्टेंस आ गए. मतलब जैसे कि वो पहले रूम शेयर करते थे, जब वो सिटी में गए तो उनका रूम भी चेंज हो गया. फिर खुशवंत सिंह को फिर जब वो यूनिवर्सिटी गए 5 साल के लिए तो तब फिर उनकी ग्रैंडमदर थोड़ा सा तब रिलेशन में थोड़ा सा वो फीलिंग से चेंज आया. बच्चे थोड़ी सी इसमें गलतियां हैं, इसको मैं ठीक करता हूँ. लेट मी टेक यू ऑल बैक इन द चैप्टर, है ना. इस चैप्टर को ध्यान से सुनना. इस चैप्टर में 3 फेजेस की बात की गई है. एक पहला फेज जब खुशवंत सिंह और उसकी दादी माँ विलेज में होते हैं, दूसरा फेज जब वो सिटी में आते हैं, और तीसरा फेज जब खुशवंत सिंह जो है अब्रॉड चला जाता है. ठीक है, अब हम पहले फेज की बात करते हैं. पहले फेज में जब ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह विलेज में हैं और उसके पेरेंट्स जो हैं वो सिटी में शिफ्ट हुए हैं फॉर लाइवलीहुड, तो जो बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, ग्रैंड मदर और खुशवंत सिंह के बीच में, ये बहुत स्ट्रांग है. क्योंकि ग्रैंड मदर खुशवंत सिंह के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है, राइट फ्रॉम टेकिंग हिम टू द स्कूल, coming back and giving stale chapatis to stray dogs. They are eating together. They are spending more time together in village life. अब अल्टीमेटली क्या होता है बच्चे, जो पेरेंट्स हैं जो कि सिटी में गए हैं वो दादी माँ और खुशवंत सिंह को सिटी में ले जाते हैं. अब जब खुशवंत सिंह सिटी स्कूल में जाना शुरू करते हैं तो ये स्कूल मोटर बस में जाते हैं. पहले क्या होता था, पहले दादी माँ इनको छोड़ने जाती थी, मगर अब दादी माँ छोड़ने नहीं जा पाती और ये मोटर बस में जा रहे हैं. दूसरी बात, सिटी स्कूल में खुशवंत सिंह को साइंटिफिक चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है, उससे दादी माँ अपसेट है. दादी माँ क्यों अपसेट है? बिकॉज दादी माँ वांट्स कि खुशवंत सिंह को साइंटिफिक चीज़ें नहीं, रिलीजियस स्टडीज़ करवाई जाए. अब थर्ड पॉइंट यहाँ पे क्या आता है कि खुशवंत सिंह को स्कूल में डांस और म्यूजिक सिखाते हैं. अब जब दादी माँ को ये पता लगता है कि स्कूल में तो डांस और म्यूजिक सिखा रहे हैं तो वो गुस्सा हो जाती है. शी गेट्स अनॉयड बिकॉज ग्रैंड मदर यूज टू बिलीव दैट ये जो सिंगिंग और डांसिंग है ये लो क्लास पीपल के लिए. ठीक, खुशवंत सिंह अपने स्कूल की जो रूटीन है दादी माँ को बताना बंद कर देती हैं, क्योंकि उन्हें ये फील हो जाता है कि जब भी मैं दादी माँ को स्कूल की बातें बताता हूँ दादी माँ अपसेट हो जाती है. यहां से इनके रिलेशनशिप में चेंजेस आने शुरू होती हैं. अब खुशवंत सिंह दादी माँ फिजिकली एक रूम में तो रहते हैं, बट ये आपस में चीजें डिस्कस नहीं करते हैं. अब जैसे टाइम पास होता है तो खुशवंत सिंह बड़े हो जाते हैं, वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं. यूनिवर्सिटी में जब वो जाते हैं तो वो एक हॉस्टल में शिफ्ट कर लेते हैं और फाइनली वो अब्रॉड चले जाते हैं 5 साल के. यूनिवर्सिटी में नहीं जाते 5 साल में, वो अब्रॉड चले जाते हैं 5 साल में. ठीक है, मगर जब वो अब्रॉड से वापस आते हैं दादी माँ आउट ऑफ जॉय सेलिब्रेट करती हैं सभी नेबर्स की लेडीज को बुला के, ड्रम बीट करके और वॉरियर सॉन्ग्स गा के, जिससे ये पता चलता है कि दोनों के बीच में जो फीलिंग थी वो वैसे ही थी, वो अनचेंज थी. गॉट इट बच्चे? एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन? इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चे? No, sir. Shall we move to another question? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
I really want to ask this question from the Discovering Tart. The saga continues. The question says, why is scientific intervention necessary to unearth buried mysterious? क्यों किंग टट की मम्मी पे साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल हुआ रिसर्च में? Who will answer this question? बच्चे, switch on the cameras. Please turn off the cameras and answer this question. Who will answer? Who will be answering? क्यों क्यों टट का जब रिसर्च किया तो उसमें साइंटिफिक चीजों का इस्तेमाल हुआ? क्योंकि किंग टट की जो डेथ थी वो एक मिस्टीरियस डेथ थी। वेरी गुड। और मिस्टीरियस डेथ थी, एग्जैक्टली। सर उसकी मिस्टीरियस डेथ को मतलब वो करने के लिए और वो उन्होंने एक साइंटिफिक किंग भी था जिसकी वजह से सबको ये था कि वो कैसे मरा एंड ऑल। वेरी गुड, वो एक किंग भी था। ओके सर, और वो लास्ट वो था पैरोलिन डायनेस्टी का, तो और वो बहुत ही ज्यादा यंग एज में उसकी डेथ हुई। तो जब उसकी सबसे पहले हार्वर्ड कार्टर ने उसको उसकी जब वो बॉडी मिली तो उसने बड़े ज्यादा मतलब बॉडी को डैमेज किया, हार्श तरीके से उसको वो डैमेज किया। और जब उसके सीटी स्कैन्स हुए तो उसकी लिम्स वगैरह में थोड़ा वो पता चला कि वो थोड़ी वो है, तो ओके इसलिए कि जो उसको मैटर ऑफ डेथ है वो ओके। इंटरेस्टिंग है आर्कोलॉजिस्ट के लिए। ध्यान से सुनिए एक बार। बेसिकली किंग टट जो थे, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ ए वेरी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी। आफ्टर द डेथ ऑफ किंग टट, जो डायनेस्टी थी, इट अल्टीमेटली कम टू एन एंड। ही बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली, ठीक है। उसकी डेथ जो थी वो एक बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई थी। नो वन नोज द रीजन ऑफ हिज डेथ, दो ही डाइड इन हिज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? टीन एज, राइट। The scientists want to give the right information about his death. इसलिए to gather all the proofs and evidences, they introduced scientific interventions and they made it necessary to unearth the buried mysteries so that they can give exact proof to the world about the death of King Tut. Got it? यस सर। ओके बच्चे, हर्षिन समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। आई वांट ए कलेक्टिव रिस्पांस। बच्चे यस सर। बच्चे, आई डोंट वांट ए लेजी रिस्पांस, आई वांट ए वेरी पॉजिटिव रिस्पांस फॉर सर एवरीवन। एक बार फिर से रिपीट कर सकते हो? ओके, बिल्कुल रिपीट कर सकता हूँ। बच्चे देखिए, अगर किंग टट की बात करें तो एक बहुत ही यंग एज में मरे थे, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे थे, किंग थे, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूलर थे। इनके मरने पे उस डायनेस्टी का एंड हो गया था, राइट। ये कैसे मरे थे किसी को नहीं पता था, ये बहुत ही यंग एज में मरे थे। साइंटिस्ट इनके डेथ का जो रीज़न था उसे बहुत एग्जैक्ट देना चाहते थे, राइट इन्फॉर्मेशन उसकी देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने साइंटिफिक इंटरवेंशंस को यूज किया किंग टट की इन्वेस्टिगेशन में। ओके सर। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर the earth's principal biological system being depleted? 4 प्रिंसिपल बताओ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अर्थ के फ्रॉम एलिंग प्लैनेट। हु विल आंसर? फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स, ग्रासलैंड्स। वेरी गुड। अब इसको ध्यान से सुनना बच्चे, जब फिशरीज हैं, वी ह्यूमन व्हाट वी आर डूइंग इज फॉर ओवर प्रोटीन, है ना, we are overfishing. Due to the overpopulation, everyone wants to have their own house. We are making structures, but at what cost? At cost of the nature. We are cutting more and more trees. We are moving forward with the deforestation, right? Yes. If you talk about croplands and grasslands, previously what used to happen, we used to use natural manure. What do you mean by natural manure? Cow dung is a type of natural manure for the right production of the crops, right? But as the population is increasing
And people, moreover, they are using natural manure for cooking purposes. They are using artificial manure, that is fertilizer. Yes. If you use fertilizer in excess, definitely it will ruin the fertility of the soil, and eventually the grasslands and the croplands are converting into the wastelands and deserts. ठीक है बच्चे, समझ में आ गया Yes, सबको? sir. Yes. पक्का? Yes, sir. Okay. Moving to next question. This question is from the adventure, the lack of determinism in quantum theory. कौन समझाएगा? Who will explain this question? बच्चे, who will explain this question? शुभाना कोशर. Yes, sir. बच्चे, क्या हुआ था इस क्वेश्चन में? लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म में क्वांटम थ्योरी. Sir, बच्चे नहीं आता तो कोई बात नहीं. हर्षिन इज रेजिंग हर हैंड. हर्षिन, ओवर टू यू. तो क्वांटम ये जो लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी हमें ये बताती है कि जब कि अगर सपोज करें अगर एक बुलेट जो है वो फायर्ड की गई है गन से उस एक गिवन डायरेक्शन और एक स्पीड पे, तो हमें पता चलता है कि वो कहाँ पे है. बट ऐसी सेम असर्शंस जो है वो हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं कर सकते. जैसे अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम एक सोर्स से एमिट करते हैं तो वो कहीं भी जा सकता है, उसकी कोई फिक्स्ड वो नहीं होती है. तो दिस इज स्टेटेड एज द लैक ऑफ डिटर्मिनेशन इन क्वांटम थ्योरी. और ये क्वांटम थ्योरी जो है वो एक्सर्ट करती है कि जो रियलिटी है वो वन साइडेड नहीं होती. ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड्स या पैरेलल वर्ल्ड जो है वो Exist एग्जिस्ट करते हैं. करते हैं. एग्जिस्ट करते हैं. वेरी गुड. और और अकॉर्डिंग डॉक्टर राजेंद्र देश पांडे. राजेंद्र देश पांडे, तो जो प्रोफेसर गायकवाड़े होंगे वो उन्होंने ट्रांजिशन किया होगा, क्या पता, वो पैरेलल वर्ल्ड में जब वो एक्सीडेंट हुआ था जब उनका. वो गए होंगे बिकॉज ऑफ दिस क्वांटम थ्योरी. यस इट माइट बी हैपन, राइट? यस पहले क्या होता है कि ही इज नॉट बिलीविंग. ही सेज कि आप क्या सोच रहे थे जब आपका कोलिजन हुआ? He said, I was thinking कि if Maratha have won the war, then what would have happened? Then, Yes, sir. to prove him wrong and prove himself right, he took out a piece of paper which showed that कि definitely he has traveled to a parallel world. और उस पे ये कहते हैं कि it might be possible because of क्वांटम थ्योरी. क्वांटम थ्योरी ये कहती है, जिस तरह से हर्षिन ने बताया, कि जब हम एक बुलेट फायर करते हैं तो बुलेट कहाँ जाएगा वो हमें पता होता है, मगर जब हम एक इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, उसे फोर्स देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, किसी भी स्पीड में जा सकता है. दैट इज अनप्रेडिक्टेबल. तो हो सकता है उसी तरह से एक पैरेलल वर्ल्ड जो है वो एग्जिस्ट किया हो और ही हैड मेड ए टाइम ट्रैवल टू दैट पर्टिकुलर वर्ल्ड. गॉट इट बच्चे? Yes, sir. बच्चे, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके. Yes, sir. कमिंग टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. दिस इज फ्रॉम योर स्नैपशॉट. बच्चे, स्नैपशॉट को अच्छे से कर लेना और अपना ड्रामा जो है मदर्स डे उसको भी अच्छे से आप प्रिपेयर करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्नैपशॉट इज, द एड्रेस इज अ स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकमेंट दैट फॉलो वॉर. कमेंट. हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? इसका मतलब है एड्रेस जो है, जो स्टोरी है, उसमें ये बताया गया कि हाउ डिस्ट्रक्शन इफेक्ट्स, हाउ डिस्ट्रक्टिव वॉर ह्यूमन को इफेक्ट करती है और वॉर के बाद क्या चेंजेस होती हैं. तो एड्रेस के हिसाब से आपने इस पे कमेंट करना है. बच्चे, वॉर क्या होता है? प्रैक्टिकली बात करते हैं इस पे पहले. वॉर क्या होता है? अच्छा होता है, बुरा होता है? बुरा. बुरा. वॉर से क्या होता है? लड़ाई. डिस्ट्रक्शन होती है ना? तो अगर हम मार्गा मिंगो की बात करें तो वॉर से पहले उसकी लाइफ बहुत अच्छी थी. वो अपनी मदर के साथ रह रही थी, है ना? उसका खुद का घर था, उसके पास अपनी वैल्यूएबल्स थी. मगर जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ तो उसको वहां से मूव करना पड़ा, अपने घर से ही मूव करना पड़ा. जब उसने मूव किया तो उसने अपनी मदर को लूज किया, राइट? उसने शी वॉज लिविंग इन फेयर कि उसको कभी भी जर्मन्स मार सकते हैं. शी बिकम द विक्टिम ऑफ वॉर. उसका अपना घर था जो कि अब उसने लूज कर दिया. अब शी started living in a rented apartment.
रेंटेड अपार्टमेंट में रहने के बाद शी गॉट उसे एड्रेस याद था, ठीक है, एंड शी वांटेड टू टेक द वैल्यूएबल्स बैक फ्रॉम मिसेस डॉर्लिंग, जो उसकी मदर ने मिसेस डॉर्लिंग को दिया था। आफ्टर वॉर जब वो अपने वैल्यूएबल्स लेने जाती है और फर्स्ट टाइम डोर को नॉक करती है, मिसेस डॉर्लिंग उसको रिकॉग्नाइज करती है, और मगर वो प्रिटेंड करती है जैसे कि उसने मार्गा मिंगो को पहचाना ही नहीं, और मार्गा मिंगो वापस चली जाती है। वो एक और ट्राई करती है और इस टाइम पे मिसेस डॉर्लिंग नहीं होती, मिसेस डॉर्लिंग की बेटी होती है। वो उसे अंदर आने देती है, वो अपनी बिलोंगिंग्स को देख के शॉक हो जाती है, बिकॉज बिलोंगिंग्स को अच्छे से नहीं रखा होता, इट हैज़ बीन केप्ट इन अ वेरी शैबी वे, ठीक है, और वो एड्रेस को भूलना चाहती है और वापस आ जाती है। मगर वॉर ने क्या इम्पैक्ट किया मार्गा मिंगो की लाइफ में? एक तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, उसका अपना घर चला गया, उसके वैल्यूबल्स चले गए, उसकी मदर चली गई, एंड इट हैज़ कॉस्टेड वेरी डिस्ट्रक्टिव पॉइंट इन हर लाइफ। गॉट इट बच्चे? यस सर। बच्चे क्लियर है सबको? Yes, sir. Any doubt in this particular question? Is there any No, doubt? sir. कर लोगे सभी? Yes, sir. Okay. Coming to next question. The next question says, did the boys return the horse because they were conscience stricken or because they were afraid? अब conscience stricken का मतलब होता है कि जो आराम और मराठ थे, इन्होंने हॉर्स जॉन बैरो को गिल्ट से दिया या फिर ये डर गए थे? Who will answer this question? क्या लगता है आपको? वो गिल्ट फील कर रहे थे, बुरा फील कर रहे थे, या डर गए थे? ओके, इस स्टोरी को फिर से आपको सुनाता हूँ। बेसिकली एक स्टोरी दो बच्चों की है, दो लड़के हैं, एक का नाम आराम है, एक का नाम मुराद है। ये एक गंगोलियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं, आर्मेलियंस हैं, ठीक है। इनका जो ट्राइब, इनका जो क्लैन है, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है। इनको एक पैशन है हॉर्स राइड करने का। ये मुराद एक दिन हॉर्स लेके सुबह के टाइम पे वी आवर्स में, ठीक है, सुबह के टाइम पे वी आवर्स में आराम के घर जाता है और आराम को आवाज़ मारता है। आराम को लेके ये हॉर्स राइडिंग करने के लिए जाते हैं। अब ये सनराइज से पहले हॉर्स राइडिंग करते हैं और जब लोगों के उठने से पहले हॉर्स को विनयार्ड में छोड़ते हैं। अब विनयार्ड क्या होते हैं? जो कि अंगूर के खेत होते हैं, उन्हें विनयार्ड कहा जाता है। एक दिन ये वापस अपने हॉर्स को विनयार्ड में छोड़ने जा रहे होते हैं और सामने से देखते हैं कि सामने जॉन बैरो है। जॉन बैरो कौन है? ही इज द ट्रू ओनर ऑफ द हॉर्स। वो कहता है कि दिस इज सिमिलर एज माई हॉर्स, दिस हॉर्स इज सिमिलर एज माई हॉर्स। मुराद को कहता है कैन आई चेक दिस हॉर्स? तो मुराद कहता है यस प्लीज यू कैन चेक दिस हॉर्स। तो उसके दांत गिनता है, दांत बिल्कुल सेम होते हैं। नाउ जॉन बैरो सेज कि माइट बी दिस हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स, ठीक है। और वो वहां से चला जाता है बिकॉज ही हैज फुल एश्योरेंस के जो गंगोलियन ट्राइब के जो मेंबर हैं वो कभी भी गलत नहीं करते, कभी भी चोरी नहीं करते। इनको गिल्ट फील होता है, ये कॉन्साइंस स्ट्रिकन होते हैं और अगले दिन जाके जॉन बैरो के घर में वापस घोड़े को रख के आ जाते हैं। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? अमृता, सिया, जशप्रीत, अंजलि, शुभाना, पलक, एनी डाउट? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, No. हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, बच्चे ड्रामा अच्छे से कर लेना, मदर्स डे से क्वेश्चन आएगा और हो सकता है ऑप्शन बी, दोनों क्वेश्चन जो हैं ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी मदर्स डे से आए, ठीक है। सो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मिसेस फिट्जजेराल्ड एंड मिसेस पियर्सन एंड हु डू यू एडमायर एंड व्हाई? कौन बताएगा फिट्जजेराल्ड और पियर्सन का कैरेक्टर? पलक आहूजा Yes. बेटा, कंपेयर करो फिट्जजेराल्ड और पियर्सन के कैरेक्टर में। तो जो मिसेस पियर्सन थी वो एक पोलाइट एंड वेरी गुड, सॉफ्ट काइंड ऑफ मदर थी, और जो फिट्जजेराल्ड थी वो एक बोल्ड लेडी थी जो इंडिपेंडेंट थी। मिसेस पियर्सन जो वो अपने ही सिर्फ घर के काम करती थी, वो कभी भी बोलती नहीं थी कुछ भी, किसी को कोई भी कंप्लेंट नहीं करती थी। सिर्फ जो भी उसके चिल्ड्रन एंड
हस्बैंड ऑर्डर देता था वो वही करती थी मिसेस फिट्जजेराल्ड जो थी। फिर उन्होंने मिसेस पियर्सन की हेल्प की बाय स्वैपिंग द बॉडी वेरी गुड। एंड उन्होंने एक लेसन सिखाया मिसेस पियर्सन की फैमिली को कि इंडिपेंडेंट होना होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना। मगर फिट्जजेराल्ड का कैरेक्टर कैसा था? शी वॉज बोल्ड, she was outspoken, she was indulged in bad habits because she used to smoke and she used to drink stout, right? If I talk about Mrs. Fitzgerald, she was against the cruelty which has been done to the female especially, and she was a person who was very aggressive, बहुत aggressive थी Fitzgerald, right? तो इस तरह से आपने इसको contrast किया, but पलक, who do you admire the most, Fitzgerald या Pearson? तो फिट्जजेराल्ड। Why? तो बिकॉज वो इंडिपेंडेंट थी, वो अपने फैसले खुद लेती थी, वो किसी के ऑर्डर्स वगैरह फॉलो नहीं करती थी। और she was helpful, she supported and helped Mrs. Pearson to set her family so that Pearson could spend a beautiful life ahead with her family. तो बच्चे यहाँ पे आपके ही व्यूज आएंगे। अगर आपको पियर्सन पसंद है तो क्यों पसंद है आपको लिखना है, अगर आपको फिट्जजेराल्ड पसंद है तो क्यों पसंद है आप उसको लिखेंगे। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन बच्चे? No, sir. अगर हम और पार्ट की बात करें तो और पार्ट में द क्वेश्चन इज हाउ मिसेस फिट्जजेराल्ड passing for Mrs. Pearson does put Mr. George, Doris and Cyril in their places. मतलब कि मिसेस फिट्जजेराल्ड ने पियर्सन की हेल्प करने के लिए जॉर्ज को, डॉरिस को, साइरल को कैसे सेट किया? हु विल आंसर? कैसे सेट किया बच्चे मदर्स डे में? अमृता? यस सर। बच्चे कैसे किया सेट उसने, फिट्जजेराल्ड ने? सर पहले तो तब मिसेस डॉरिस, तो उसने तब बोला कि आप मेरी ड्रेस आयरन कर लो, तो उन्होंने पहले उसके लिए मना किया। बेटा प्रेस फिर नहीं, तब सीरियल येलो ड्रेस को आयरन कर लो। यस सर। उसके बाद जब सीरियल आया उसने तब टी के लिए बोला, तो उन्होंने बोला कि तुम खुद बना लो। उन्होंने बहुत ही एक अजीब तरीके का बिहेवियर शो किया। उसके बाद तब मिस्टर जॉर्ज आए, तो उनको भी मतलब बहुत एक अजीब से बिहेवियर के साथ उन्होंने ट्रीट किया। तो जॉर्ज ने मिसेस पियर्सन को क्या कहा? जॉर्ज ने कहा कि आई एम गोइंग टू क्लब, डोंट प्रिपेयर टी फॉर मी। तो इसमें मिसेस पियर्सन जो कि फिट्जजेराल्ड थी उसने क्या रिप्लाई किया? उसने कहा कि आई हैवंट प्रिपेयर्ड एनी टी फॉर यू। तो इससे क्या हुआ? इससे जॉर्ज पियर्सन का ईगो हर्ट हो गया एंड ही सेड कि व्हाट, यू हैवंट प्रिपेयर्ड ए कप ऑफ टी फॉर मी। तो इसमें दोनों की बहस हो जाती है, दे कम इनटू आर्गुमेंट एंड यहाँ पे फिट्जजेराल्ड कहती है जो कि पियर्सन है कि यू नो व्हाट पीपल कॉल यू एट क्लब। कहता है व्हाट? कहता है पीपल कॉल यू ओम्पी पॉम्पी पियर्सन, राइट? इसमें वो कहता है कि नो, पीपल डोंट कॉल मी ओम्पी पॉम्पी पियर्सन। वो कहता है कि आस्क फ्रॉम साइरल। साइरल कहता है कि मदर ओके लीव इट, बट वहाँ पे जॉर्ज पियर्सन पूछता है कि डज पीपल रियली कॉल मी ओम्पी पॉम्पी पियर्सन? तो वो कहता है यस डैड। तो वो साइड पे हो जाता है। तो अब क्या होता है कि वहाँ से बेल पे रैंग होता है, साइरल दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि दैट ओल्ड लेडी फ्रॉम द नेक्स्ट डोर इज देयर एट द डोर। तो वो कहते हैं वाई यूजिंग दिस वर्ड फॉर योर एल्डर्स। तो अब वो फिट्जजेराल्ड अंदर आती है जो कि असली पियर्सन है। वो कहती है अब फिट्जजेराल्ड जो कि पियर्सन की बॉडी में है वो देखती है, वो कहती पियर्सन जो कि फिट्जजेराल्ड की बॉडी में है वो कहती है कि नाउ दिस इज हाई टाइम वी नीड टू स्वैप द पर्सनालिटीज अगेन। वो अपनी पर्सनालिटीज को स्वैप करती हैं और इतनी देर में फैमिली मेम्बर आते हैं, उनको रियलाइज़ होता है कि उन्होंने पियर्सन के साथ गलत किया है। वो सॉरी बोलते हैं, बच्चे जो हैं वो सब पर प्रिपेयर करते हैं और पूरी फैमिली रम्मी खेलती है और यहाँ पे प्ले जो है वो ख़त्म हो जाता है। गॉट इट? यस सर। तो प्ले के साथ साथ हमारी सेक्शन सी भी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। नाउ वी आर स्विचिंग टू सेक्शन बी। बच्चे सेक्शन सी में किसी को कोई प्रॉब्लम? बच्चे एनी प्रॉब्लम? Class, I want responses from you.
सेक्शन सी No, में? sir. ओके, No. मूविंग टू सेक्शन बी, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज यू आर रिवान चौधरी। तो आपका नाम यहाँ पे दिया है, आप कौन हैं? आप रिवान चौधरी हैं। यू आर ए पार्ट ऑफ द ट्रैफिक वीक कैंपेन, आप ट्रैफिक वीक कैंपेन के एक हिस्सा हैं जो कि आपके स्कूल चला रहा है। आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है जिसमें आप लोगों को एनकरेज करेंगे और उनको सजेशन करेंगे कि हम पेट्रोल किस तरह से बचा सकते हैं। तो बच्चे, की वन थिंग इन योर माइंड, आपका जो पोस्टर है वो बॉक्स में आएगा। बॉक्स बनाने के लिए आप हमेशा पेन और स्केल का इस्तेमाल करेंगे। पोस्टर का कोई भी सेट फॉर्मेट नहीं है, आप इसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं लिख सकते, आपको पॉइंटर्स में लिखना है, आपको सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी है, आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं यूज़ करनी है, आपको पोस्टर क्रिएटिव बनाना है। आप इसमें आर्ट कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, जो आर्ट है वो भी आप पेन से करेंगे, पेंसिल अलाउड नहीं है। तो हमारा टॉपिक क्या था? ट्रैफिक वीक कैंपेन। हमने हेडिंग डाला ट्रैफिक वीक कैंपेन। अब हम पेट्रोल को किस तरह से सेव कर सकते हैं, आप प्रिकॉशंस या सजेशंस टाइटल में डाल के आप लिख सकते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें ई स्कूटीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें बाइसिकल चलाना चाहिए, हमें वॉक करके जाना चाहिए, और जब भी हम ट्रैफिक सिग्नल में हो और जो सिग्नल है वो रेड है तब हमें अपनी गाड़ी जो है वो ऑफ कर देनी चाहिए। तो आप रिवान चौधरी हैं, आप सेम इंफॉर्मेशन यूज़ करेंगे और अपने पोस्टर को क्लोज करेंगे। इज देयर एनी प्रॉब्लम बच्चे? No, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क। No, sir. ओके, सो हम इसका और वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और वाला क्वेश्चन कहता है एज जनरल मैनेजर, इसका मतलब आप क्या हैं? आप जनरल मैनेजर हैं किसके? लीप फॉरवर्ड सोल्यूशन के। ये कंपनी जो है ये श्रीनगर में है। आपको एक सेल्समैन चाहिए जिसका एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल आइटम्स में होना चाहिए, एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। आप ड्राफ्ट करेंगे एक एडवर्टीजमेंट सिचुएशन वेकेंट के कॉलम में न्यूज़पेपर के लिए अपनी रिक्वायरमेंट बताते हुए। तो सिचुएशन वेकेंट, हेडिंग क्या आएगा? सिचुएशन वेकेंट। आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो बॉक्स में होना चाहिए। आप एडवर्टीजमेंट कैसे स्टार्ट करेंगे? रिक्वायर्ड या वांटेड, रिक्वायर्ड या वांटेड सेल्समैन विद द साउंड एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रिक आइटम, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है। और द एलिजिबिलिटी टू बी फुलफिल्ड हैज बीन मेंशन एज अंडर। आप उसको टेबलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसकी क्या एज होनी चाहिए, या आप उसे सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, उसकी क्या एज होनी चाहिए, उसका कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और जो कैंडिडेट हैं वो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपना वैकेंसी को? बाय सेंडिंग देयर रिज्यूमे बाय विजिटिंग द कंपनी इन श्रीनगर, या वो ईमेल भी कर सकते हैं या वो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो बच्चे, एडवर्टीजमेंट में कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल देना इज मैंडेटरी। गॉट इट? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. No, sir. Okay. Right में देना है। बच्चे, यू कैन गिव, अगर राइट में जगह तो आप राइट में कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, और सॉरी अगर लेफ्ट में जगह तो लेफ्ट में कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, अगर राइट में आप ईमेल दे दीजिए, नॉट एन इशू। Okay, sir. ओके बच्चे, तो बच्चे आई विल बी डिस्कसिंग ए पर्सनल लेटर, राइट? पर्सनल लेटर इज द इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का क्वेश्चन ये है कि आपका फ्रेंड एक अली है, ही इज इन लव विद द हरिजन गर्ल। आपको एक लेटर लिखना है, उसको अपने व्यूज जो हैं इंटर कास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज में आप शेयर करेंगे। यू आर एन चौधरी और आपका एड्रेस ये है। तो बच्चे, लेटर का फॉर्मेट होता है सेंडर एड्रेस। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेंडर एड्रेस से। तो इस क्वेश्चन में सेंडर एड्रेस दिया है, Yes, sir. कहाँ पे दिया है? व्हाट इज? 125 मेन रोड। 125 वेरी main गुड। road. तो आप अपना सेंडर एड्रेस लिखेंगे, पिन कोड लिखेंगे, पिन कोड हैज टू बी इमेजिनरी, लेवल लाइन, डेट का फॉर्मेट सेक्शन बी में यही रहेगा, लेवल लाइन। आप रिसीवर एड्रेस देंगे। रिसीवर एड्रेस कहीं दिया है क्वेश्चन में बच्चे? इनफॉर्मल में तो होता ही नहीं है ना रिसीवर एड्रेस। क्यों नहीं होता बच्चे? नहीं। किसने बोला? हु टोल्ड? हु टोल्ड कि रिसीवर एड्रेस नहीं होता? अगर रिसीवर एड्रेस नहीं होता तो लेटर किसके घर जाएगी? आपने अपने एड्रेस तो दिया, आप अपने घर ही भेज दोगे लेटर। लेटर किसके घर जाएगी? रिसीवर के घर जाएगी ना बच्चे। तो जब तक एड्रेस ही नहीं होगा तो रिसीवर के घर कैसे पहुंचेगी? Who asked this question? Okay. Anyways, is this clear to you now? Yes, sir. Okay. Yes, sir.
तो रिसीवर एड्रेस नहीं दिया, यहाँ पे आप इमेजिनरी एड्रेस देंगे, पिन कोड लिखेंगे, और आप किसको लेटर लिख रहे हैं? अली को। अली को लेटर लिखेंगे, बॉडी फ्रेम करेंगे, बॉडी फ्रेम करने के बाद यू विल लीव अ लाइन, पर्सनल लेटर है तो आप योर्स लविंग फ्रेंड यूज करेंगे, योर नेम इज गिवन ओवर देयर, सो यू विल बी राइटिंग नेम एज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। और जब भी हम इनफॉर्मल लेटर यूज करते हैं तो वहां पे सर या रिस्पेक्टेड सर नहीं लिखते, वहां पे डियर आता है। इज इट क्लियर? और जब भी हम फॉर्मल इन फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हमेशा फॉर्मल लेटर में रिस्पेक्टेड सर आता है, डियर सर नहीं आता। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर डियर अली के आगे कॉमा नहीं आएगा? किसके आगे बच्चे? डियर अली के आगे कॉमा आप हटा भी सकते हैं, नॉट एन इशू। ओके सर। ओके, इसके ऑप्शन में एक लेटर है, द लेटर सेज ए रूम ऑफ योर स्कूल कोलैप्स्ड व्हेन देयर वाज अ फंक्शन गोइंग ऑन। ठीक है, आपके स्कूल का एक रूम गिर गया जब वहाँ पे फंक्शन चल रहा था। सुगम जो कि हेड गर्ल है आपकी स्कूल की, उसने कमांड अपने हाथ में ली, उसने इंजर्ड को, जो लोग इंजर्ड हो गए थे, विक्टिम थे, उनको फर्स्ट एड दिया, एम्बुलेंस बुलाई, और यू नीड टू इमेजिन योर सेल्फ एज द प्रिंसिपल ऑफ JNM पब्लिक स्कूल। आपको एक लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को, रिकमेंड करना है स्टूडेंट का नाम ब्रेवरी अवार्ड के लिए। तो सबसे पहले आपका क्या आया? सेंडर एड्रेस, आप प्रिंसिपल हैं, अपना डेजिग्नेशन लिख के अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है। आपने लाइन छोड़ा, आपने डेट लिखा, आपने अगेन लाइन छोड़ा, आपने जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस लिखना है। तो लेटर किसको लिखा जा रहा है? डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन को। आपने रिसीवर एड्रेस लिखा, यू हैव टू लीव अ लाइन। सब्जेक्ट क्या है? रिकमेंडेशन फॉर द ब्रेवरी अवार्ड। इसके बाद आप उसकी ब्रेवरी की एक्ट को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, अगेन थैंकिंग यू, लीव अ लाइन, यूअर सिंसियरली, लीव अ लाइन, SK शर्मा, इमेजिनरी नेम, और प्रिंसिपल, योर लेटर इज क्लोज। बच्चे लेटर के फॉर्मेट में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर योर सिंसियरली के बाद लाइन छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? किसके बाद बच्चे? योर सिंसियरली के बाद। बिल्कुल, ये जो मैंने एरो बनाया है इसका मतलब होता है यू हैव टू लीव अ लाइन। दिस मीन्स लीव ए लाइन। ठीक है बच्चे? यस सर। ओके, अब इट इज ए ईमेल। ईमेल कहता है कि राइट एन ईमेल टू योर आंट। आपको अपनी आंट को एक ईमेल लिखना है जो कि बीमार है, और आप उनसे पूछोगे कि आपकी हेल्थ अब कैसी है, और यू विल विश हर फॉर बेटर हेल्थ। राइट? ईमेल का एक फॉर्मेट है बच्चे, इसका सीक्वेंस गलत नहीं होना चाहिए। द सीक्वेंस इज FDTCS। F उसका ईमेल जो भेज रहा है, डेट इसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 2 जिसको ईमेल भेजा जा रहा है उसका ईमेल, CC में आपने empty रखना है क्योंकि CC आपके ऑफिशियल ईमेल में यूज होता है, बट आपके सिलेबस में सिर्फ पर्सनल ईमेल है इसलिए आपको CC में कुछ नहीं लिखना है। सब्जेक्ट आप उनको विश करें बेटर हेल्थ के लिए, विशिंग बेटर हेल्थ, और आप टाइम डाल देंगे बिल्कुल डेट के साथ। आपका सीक्वेंस नहीं अनमैच होना चाहिए, आपका सीक्वेंस इसी तरह से रहना चाहिए, और ये प्रॉपर बॉक्सिंग आएगा। अब कुछ बच्चे क्या गलती कर रहे हैं, वो एक ही बॉक्स बना रहे हैं, बट बच्चे यू हैव टू मेक दिस लाइंस टू। जैसे मैंने लाइंस आपके सामने शो की हैं, ये आपको ये सारी लाइंस बनानी है। ठीक है, पर्सनल ईमेल है तो आप डियर से शुरू करेंगे और एंड में विद रिगार्ड से भी खत्म कर सकते हैं, या योर लविंग नीज भी लिख सकते हैं। इफ द नेम इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ तो आप नेम यूज करेंगे, एल्स आप कोई इमेजिनरी नेम यूज कर सकते हैं, बट यू विल नॉट यूज योर पर्सनल इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स आप स्कूल का नाम SP स्मार्ट स्कूल कहीं यूज नहीं करेंगे, अपना पर्सनल नाम कहीं नहीं लिखेंगे अपार्ट फ्रॉम द कवर पेज ऑफ योर आंसर शीट, अपार्ट फ्रॉम द होम पेज, वहां पे आप सब कुछ करेक्ट लिख के आएंगे। ठीक है बच्चे? इज इट क्लियर? यस सर। ये मत सोचना कि सर ने होम पेज के लिए भी मना किया है। होम पेज में आपको अपना नाम लिखना है, SP स्मार्ट स्कूल ही लिखना है, मगर जब आप आंसर्स लिखना शुरू करेंगे सेक्शन B के, वहां पे आप अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करेंगे। इज इट क्लियर बच्चे? यस सर। यस सर। So there is a question. The question says sales of ready-made garments have touched an all-time high in the festive season this year in your city.
गारमेंट्स क्या होते हैं? कपड़े, क्लोथिंग, ठीक है। रेडीमेड कपड़े जो होते हैं उनकी सेल जो थी वो बहुत ज़्यादा गई है इस बारी फेस्टिव सीजन में। आपको इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल का रूल होता है बच्चे, हेडिंग जो है वो सेंटर में आएगी और बाय लाइन जो है यू हैव टू लीव अ लाइन, बाय लाइन भी सेंटर में आएगी। आर्टिकल यू हैव टू राइट फॉर 200 to 250 वर्ड्स। इज इट क्लियर? तो जब फेस्टिवल्स आते हैं, नाउ ईद इज अबाउट टू कम, तो हम क्या करते हैं? शॉपिंग, न्यू क्लोथ्स लेते हैं, शॉपिंग लेते हैं, करते हैं, राइट। हमें जो ईदी मिलती है, वी कलेक्ट दैट एंड वी गो फॉर मार्केट। तो इससे क्या होता है? इससे न्यू क्लोथ्स की सेल पे हाइक हुआ है, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगेन अगर आप पास्ट में लिख रहे हैं, यू कैन इवन राइट कि पैंडेमिक के टाइम पे एवरीथिंग वाज क्लोज्ड। सो जैसे ही न्यू नॉर्मल हुआ तो फेस्टिव सीजन में लोग बाहर निकले, दे वर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, एवरीथिंग वाज as normal as it was in the past before the pandemic hit this country। तो सभी ने कपड़े लिए, उससे जो सेल थी कपड़ों की वो बढ़ गई। तो यू हैव योर ओन थॉट प्रोसेस, आपको आर्टिकल एज पर योर थॉट प्रोसेस ही फ्रेम करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन ट्रैफिक जैमिंग इन न्यू सिटी, ए कॉमन अफेयर इन द अर्ली आवर ऑफ द डे। यानी आपको एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट लिखना है ट्रैफिक जैमिंग पे। जब सुबह सुबह का टाइम होता है तो जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं उनको बहुत ही हार्डशिप करनी पड़ती है। ये ट्रैफिक जैम क्यों लगता है? क्योंकि लोग जो हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं करते, लोग जो हैं वो गलत तरीके से रॉन्ग साइड में गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से ये मेस होता है। तो बच्चे अगर मैं रिपोर्ट राइटिंग की बात करूं, रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, आपका जो हेडिंग है वो सेंटर में आता है। यू हैव टू लीव अ लाइन, बाय लाइन लिखेंगे इस तरह से। डेजिग्नेशन जो न्यूज़ रिपोर्टर है उसका स्टाफ रिपोर्टर ही रहता है। क्वेश्चन में न्यूज़पेपर का नाम नहीं दिया है, इसलिए हमने इमेजिनरी न्यूज़पेपर का नाम लिखा है TOI, यानी टाइम्स ऑफ इंडिया। ये इंसिडेंट कहाँ का है? जम्मू का है, तो प्लेस का नाम लिखना है और डेट लिखनी है। बच्चे फर्स्ट पैराग्राफ आपने 5W रूल्स को अप्लाई करके लिखना है। 5W क्या होते हैं? व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, ठीक है। आप सिर्फ ओवरव्यू देंगे फर्स्ट पैराग्राफ में, पैराग्राफ 2 में इसको एक्सप्लेन करेंगे और पैराग्राफ 3 में आप इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देंगे। सबको क्लियर है ये? सर यहाँ पे हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं जैसे स्टाफ रिपोर्टर TOI। बच्चे TOI एक शॉर्ट फॉर्म है टाइम्स ऑफ इंडिया की, ये मैंने यूज की है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया को TOI कहते हैं। अगर क्वेश्चन में ग्रेटर कश्मीर दिया तो शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, एज पर द क्वेश्चन ही लिखना। ओके सर। ओके बच्चे? यस सर। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन 7। आई डोंट वांट यू मेक मिस्टेक इन योर फाइनल एग्जामिनेशन। बच्चे सी, एक बार ध्यान से देखिए, आपको ये पैराग्राफ दिया है, आपको इस पैराग्राफ को रीराइट करना है, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे की है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड क्या है? सी। इनकरेक्ट वर्ड की जगह करेक्ट वर्ड लिखना है और उसको अंडरलाइन करना है। यहाँ पे इनकरेक्ट वर्ड क्या है? ब्रदर, ब्रदर की जगह करेक्ट वर्ड लिखना है ब्रदर्स और उसको अंडरलाइन करना है। तो पैटर्न जो है आपकी एडिटिंग का यही होना चाहिए। यू हैव टू रीराइट द होल पैराग्राफ बाय रिप्लेसिंग इनकरेक्ट वर्ड्स विद द करेक्ट वर्ड्स एंड यू नीड टू अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स। क्लियर है बच्चे सबको? यस सर। Okay, यस सर। very good. So section B is over. Moving to section A. Section A आपका 20 मार्क्स का है, सेक्शन B आपका 30 मार्क्स का है, सेक्शन C भी आपका 30 मार्क्स का है। तो बच्चे जब भी हम सेक्शन A करेंगे एंड हम नोट मेकिंग करेंगे, नोट मेकिंग का टाइटल देना है, ठीक है। ओके, इसके नंबरिंग फॉर्मेट में अभी भी कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं। बच्चे जब भी आप नोट मेकिंग करेंगे, आपका सब हेडिंग जो है वो मिनिमम 4 होने चाहिए और सब पॉइंट्स जो हैं वो भी मिनिमम 4 होने चाहिए। आप नंबरिंग कैसे करेंगे? सब हेडिंग 1, सब पॉइंट क्या आएगा? 1.1, सब पॉइंट 2 क्या है? 1.2।
सब पॉइंट 3 के 1.3 आपने एब्रीवेशन यूज किया और एब्रीवेशन को अंडरलाइन करेंगे. मेजोरिटी ऑफ यू आर नॉट अंडरलाइनिंग द एब्रीवेशन विच इज बीइंग यूज्ड बाय यू. अब आप सब पॉइंट 2 पे गए 2, सब पॉइंट 1, सब पॉइंट 1 का हुआ 2 का 2.1, 2.2. अगर आगे आप कैरी फॉरवर्ड करते 2.3, 2.4, फिर आप थर्ड सब पॉइंट यूज करेंगे और उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे. बच्चे अगर आप कॉजेस लिख रहे हैं सब हेडिंग में, तो आपके जो सब पॉइंट्स हैं वो भी उसके रेलिवेंसी में होने चाहिए. ऐसा नहीं हो कि आपने सब हेडिंग में कॉजेस लिखा है और नीचे सब पॉइंट्स में आप क्या दे रहे हैं, इंट्रो. एक और पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. कुछ बच्चे ये गलती कर रहे हैं, जैसे कि हमें हैबिट है एंड को इस तरह से लिखने की. बच्चे अगर आप एंड को एज ए सिंबल यूज कर रहे हैं नोट मेकिंग में और आपने एंड को एब्रीवेशन बॉक्स में शो नहीं किया है, तो ये गलत है. आपको हर एब्रीवेशन को एब्रीवेशन बॉक्स में शो करना है. एक और बात आपने याद रखनी है, अगर आपने एजुकेशन का एब्रीवेशन एडू लिखा है, राइट, तो जब भी एजुकेशन आएगा तो आप एजुकेशन नहीं लिखेंगे नोट मेकिंग में, आप उसे एडू से ही रिप्लेस करेंगे. इज इट क्लियर क्लास? Yes, sir. ये पॉइंट क्लियर है सबको? एडीयू के बाद फुल स्टॉप लिखना है. एडीयू फुल स्टॉप. अब मैं आपको बताता हूं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं एजुकेशन. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू सिंपल वे. आप वॉल्स हटा दो, EDCTN, एजुकेशन. ये एब्रीवेशन बन गया आपका. ठीक है बच्चे? सर एक चीज पूछनी थी. पूछिए. सर जैसे आपने बोला ना कि अगर आपने एक जब एजुकेशन का सिंबल डाल दिया EDU, मतलब जब भी वो उसमें आएगा नोट मेकिंग में तो हम EDU ही डालेंगे. बिल्कुल, आप EDU ही डालेंगे. मतलब उसका पूरा नहीं लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एब्रीवेशन बॉक्स बना दिया और आप एब्रीवेशन ही तो यूज कर रहे हैं, तो फिर फुल वर्ड क्यों लिखेंगे? गॉट इट शुभाना? बच्चे क्लियर है? सर मतलब एक जब मतलब हम अगर हमने लिख लिया एजुकेशन का वो लाइन लगा दी, तो मतलब जब भी अगर उस नोट मेकिंग में पूरा कहीं भी एजुकेशन आएगी तो हम उसको भी EDU ही लिखेंगे. बिल्कुल, आप एब्रीवेशन यूज करेंगे. तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा. ठीक है बच्चे? यस. ओके, तो आप एब्रीवेशन बॉक्स इस तरह से बनाएंगे. You have to make box with the help of a scale and pen. You are not allowed to use pencils. आप pencils को use नहीं करेंगे. ठीक है? अब हम बात करते हैं समरी की. समरी में भी टाइटल देना है, बट समरी का टाइटल और नोट मेकिंग का टाइटल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. ठीक है? समरी का टाइटल और नोट मेकिंग का टाइटल जो है वो सेम नहीं होना चाहिए. समरी जो है ये सिंगल पेज में होनी चाहिए. समरी जो है ये सिंगल पैराग्राफ में होनी चाहिए. समरी हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखी होनी चाहिए और समरी मिनिमम 80 वर्ड्स की होनी चाहिए. इज इट क्लियर? यस सर. ओके. यस. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2. बच्चे सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन लिखना इज मैंडेटरी. Questions are mandatory. This is not my guideline. This is guideline which has been given by JK Board. अब मैं आपको बताता हूँ, कंफ्यूज मत होना. जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन के ऑप्शन दिए हैं ABCD. आपको ऑप्शंस नहीं लिखने हैं, आप सिर्फ ये लाइन लिखिए, आंसर कीजिए C, और आप C को भी अगर छोड़ देंगे तो आपका आंसर गलत है. C के साथ आपको फुल स्टेटमेंट लिखनी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन 2, आपको सिर्फ लिखना है द प्रिजुडिस इन्फेक्ट दी, आंसर में बी दी माइंड्स. आपको ये ऑप्शंस नहीं लिखनी है. इज इट क्लियर बच्चे? यस सर. यस सर. सिर्फ इस क्वेश्चन में जो सेक्शन ए का सेकंड क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, आपको क्वेश्चन लिखना मैंडेटरी है. और आंसर में हम क्या करते हैं, आंसर ए. दिस इज रॉन्ग. आपको आंसर ए और इसकी पूरी स्टेटमेंट लिखनी है. दिस इज द राइट वे ऑफ आंसरिंग विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय जेके बोर्ड. सबको क्लियर है बच्चे?
Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे बताइए, आपको Yes, sir. आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज यू कैन हाँ प्रेजेंट योर डाउट्स। सर व्हाट बच्चे? सर जैसे आपने बोला कि जो अगर हम मतलब एजुकेशन को हम एजुकेशन मतलब ईडीयू लिखेंगे है ना, और अगर सर ऐसे कोई और वर्ड आया तो हम उसको भी लिखेंगे हर जगह वैसे एब्रिविएटेड फॉर्म में। बेटा जहां जहां पे वो वर्ड यूज हुआ है नोट मेकिंग में, वहां वहां उसका एब्रिविएशन लिखेंगे और उसे अंडरलाइन हाँ, करेंगे। एजुकेशन के अलावा भी अगर कोई वर्ड रिपीट हुआ जिसको हमने एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हो बच्चे, तो भी हम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली एजुकेशन। अगर आपने डिटर्मिनेशन लिखा है, ठीक है, डिटर्मिनेशन की आपने एब्रिविएशन बनाई है DTRMNTN, तो ये जब भी आएगा यूज होगा तो आप इसका ऐब ही तो लिखेंगे, एब्रिविएशन ही तो लिखेंगे, आप वर्ड की फॉर्म में नहीं लिखेंगे। yes sir, गॉट इट? Yes. yes इज देयर एनी अदर डाउट? no sir. If you have some doubt, please feel free to ping it in the group. I will be replying you back. If you're not pinging in the group, please feel free to come to me anytime in the school and you can ask the doubts. We can really work mutually on the clarification of those doubts, and definitely I will be there helping you out, and it would be rather appreciated. But it's a very crucial time and precious time for you as your exam is approaching and it is being scheduled for 6th of April. So I really want you people to be doubt free. तो बच्चे कुछ भी दिमाग में लगे, डाउट लगे, तो प्लीज डू कम टू मी एंड क्लियर द थिंग्स फ्रॉम मी। सर हाँ जी बच्चे। हमें समरी में नहीं ना करनी होती है यूज एब्रिविएशन? समरी में नहीं करनी है एब्रिविएशन यूज, एब्रिविएशन सिर्फ नोट मेकिंग में करनी है। ओके सर। ओके बच्चे। सर? हाँ जी बच्चे। सर लॉन्ग आंसर दोनों स्नैपशॉट से आएंगे? बेटा लॉन्ग आंसर टाइप जो है एक तो प्ले से आएगा, ठीक है, और एक जो है वो स्नैपशॉट का किसी भी चैप्टर में आ सकता है। आइदर इट कैन कम फ्रॉम हॉर्नबिल। तो आपको स्नैपशॉट जो है वो 5+6 यानी उसको 11 मार्क्स की तरह प्रिपेयर करना है। बच्चे आई गिव यू वन थिंग, आप हर एक चैप्टर को अंडरस्टैंड करो, हर एक चैप्टर को रीड करो, दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। एनीथिंग एल्स बच्चे? नो सर। If there would be anything, please let me know. I will be helping you to solve your doubts. Okay, sir. और कुछ पूछना चाहते हैं बच्चे तो पूछ सकते हैं। Don't keep any confusion in your mind. No, sir. Done? Yes, sir. फिर भी कोई डाउट Yes, होगा sir. तो प्लीज ग्रुप में जरूर लिखिए। I will be responding you for that particular doubt spontaneously. हाँ जी बच्चे। सर पोस्टर में पेन यूज करना है बनाने के लिए, जो साइड की पिक्चर्स होती है, पेंसिल। बेटा इंग्लिश के पेपर में पेंसिल यूज नहीं करनी है, आप जो ड्राइंग करेंगे वो भी पेन से करेंगे। पेंसिल। हाँ जी ओके सर। बच्चा, ठीक है। एनीथिंग एल्स? No, sir. So can we close? Yes. Okay, Yes, sir. class, if you would have any doubt in future, please feel free to connect me. I will be definitely will be there to help you out with the things. And we are closing for the day. I hope this is a productive session which you have got. I will be sharing the video for the same in the group. Please go through the videos. Please don't make mistakes which we are making commonly, because we can't afford to lose easy marks. And please follow the style and the answering pattern which has been discussed in this specific paper. Thank you and have a nice day. Thank you. Thank you, sir.